चैप्टर नंबर 3 सिस्टर डिनीस के जो बुक है मुरली नोट्स 2021 juxtaposition of ideas keys to decrypt the murlis. When you go very deep into the murli, especially this murli, you realize that Baba is asking profound questions. There are juxtaposed ideas. Juxtaposition of ideas is a method used by Shiv Baba to provoke you to search for keys to decrypt the murlis. This alters the process of thought and brings us closer to the reality of our existence. First, the purpose of this study is to die from matter and from the world where people act on the belief of gaining benefit. Instead, dependence on the material world causes decline and loss. To die means to become independent, unaffected, independent on conditions, unaffected by any type of energy. Our love is now for God. If one has been a devotee for half the cycle, then there would have been love for God for a long time. Now the question is, how the remembrance of God enables you to become wealthy. In Arabic numerals, 0 is represented by a dot. He is a point. Every time you place a point, you are placing a 0 next to the 1, which multiplies its value by a factor of 10. वो बाबा कहते हैं मुरली में, every time you perform the act of surrendering yourself to God, you multiply your fortune by a factor of 10. So this is called true income. Love for God means you are ready to die for God. The question is, can you die for God? Would you die for God? What does it mean to live? To live for God, to die for God? What do we live for? Most people live for the people they are attached to, their families, friends, etc. Here we are coming to terms with the reality that these relationships are temporary. Although God is intangible, yet He is with us for all time. When you die for God, you go to God. If you die for another person, you get separated from them. If you do not die for them and they die, then also you get separated. Baba takes the analogy of a moth who is irresistibly drawn to a flame, even though it costs the moth its life. Your relationship with God resembles the relationship of the moth to the flame. You circle around Him, and eventually you surrender your life to God. Your life to God with love. This is the practice for living with God and ultimately leaving your body in remembrance of the Father. तो जब किसी देहधारी के साथ मृत्यु वाला शब्द आता है तो सेपरेशन होता है, पर जब बाबा के साथ मृत्यु वाला बात आता है तो फिर यूनियन होता है. To achieve this, there has to be attention on God and detachment from people
places and things. Can you do that? What do you get by doing that? You actually get your heart's desire. You get freedom, wealth, and fortune. You become the emperor of the world. It is an incredible risk and is based on faith. The moment of death can come anytime. Anyone about to die is told to remember God. मरते समय कहते हैं ना कि भगवान को याद करो. God comes at the end of the time cycle. When it is time for all people to leave their bodies and return to the world of light. This time is not so far in the future. When you come and study Raj Yoga with Shiv Baba, it means you die mentally from the present civilization and everything in it. You go to God and then He sends you to the new civilization. तो यहाँ वाला कलयुगी वाला सिविलाइजेशन को छोड़ के या जो ब्राह्मण सिविलाइजेशन है उसको छोड़ के संगम युग का जो सिविलाइजेशन है उसको छोड़ के नया सिविलाइजेशन में जाते हैं. He says he इसको दीदी हाँ दीदी आप इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे कि मतलब क्या भूलना है. एक्चुअली क्या है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यहाँ पर, जब जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भूलते हैं. अटैचमेंट टू पीपल, अटैचमेंट टू थिंग्स, ये सब कुछ भूलते हैं. भले हम यूज़ करते हैं मटेरियल चीज़ें, यूज़ करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर उसको खोने का डर या वो खोने के बाद दुख होना, उससे शिफ्ट कराते हैं बाबा. और फिर जब ये सिविलाइजेशन, प्रेजेंट सिविलाइजेशन, मेंटली हम मरते हैं, जब राज योगा करते हैं तो हम न्यूट्रल स्टेट में चले जाते हैं. और न्यूट्रल स्टेट में जाने के कारण हम प्रेजेंट सिविलाइजेशन मेंटली हम डिटैच हो जाते हैं. एंड देन जब डिटैच हो जाते हैं यहाँ से, फिर परमधाम जाने के बाद न्यू सिविलाइजेशन जो सतयुग वाला सिविलाइजेशन, वहाँ पर आते हैं. क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा हुआ दीदी. तो न्यूट्रल स्टेट में जाना ही मरना, मेंटली मरना. कोई भी चीज़ Okay. कोई भी बात में, चाहे किसी आत्मा के साथ संबंध, वो भी न्यूट्रल संबंध. जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा आपने, हमने पढ़ा है कि विश्व किशोर भाव ने शरीर छोड़ा था मुंबई में. हाँ, तो उनके साथ जब थे, तो जब मुंबई जा रहे थे तो ब्रह्मा बाबा ने गले मिल के आंसू तक आया बाबा को. पर जब शरीर छोड़ा तो बाबा ने बोला कि वहीं पर बॉडी को जला दो. इतना डिटैच स्टेट में रहना है, न्यूट्रल स्टेट में. जहाँ किसी को मदद करना है तो फुल तरीक़े से मदद करो, पर इमोशनली अटैच नहीं होके, कि इमोशनली इतना अटैच्ड हो जाओ कि अगर कुछ बात आए तो दुख हो जाए. चाहे वो दुख, चाहे वो बात मृत्यु के हिसाब से आते हैं या उस आत्मा का बिहेवियर के हिसाब से आते हैं. इतना हमें सावधान रहना है. कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए. उसको मेंटली डाई कहते हैं. इसीलिए दीदी ने कहा कि व्हेन यू कम एंड स्टडी राज योगा विथ शिव बाबा, इट मीन्स यू डाई मेंटली फ्रॉम द प्रेजेंट सिविलाइजेशन एंड एवरीथिंग इन इट. You go to God and then He sends you to the new civilization. धीरे धीरे हमारा कॉन्शियसनेस बाबा के तरफ शिफ्ट होते जाता है.
He says he is showing the path to the new world that involves remembering him, letting go of your emotional bonds to everything and everyone, while aware that what you get from this world is transient. तो बाबा को अच्छी तरह पता है कि कहीं से छुड़ाने के लिए कुछ देना पड़ेगा, इसलिए बाबा की याद हमारे लिए वो अल्टरनेटिव चीज़ हो गया जो इस दुनिया को हम भूल पाए। और फिर सतयुग में जब आते हैं तब बाबा की याद भी नहीं रहता है। तो बाबा की याद जो है सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, और उस कारण से बाबा हमारा कितना साथ भी देते हैं, बाबा हमारा ध्यान रखते हैं, ताकि वो अनुभव होने के बाद हमें वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या यहाँ के संबंधों का डिफरेंस, बाबा के साथ जो डिफरेंस है वो हमें अनुभव हो और हम धीरे धीरे उससे डिटैच होते जाए, मेंटली मर जाए। In some ways, it is easier for women because the current world does not offer women much. So they do not have much to give up, except perhaps their attachment to their husbands and children, but eventually they will lose even those. तो women का जो attachment होता है वो dependency के कारण होता है, क्योंकि बचपन से ही विमेन को कंडीशन किया जाता है डिपेंडेंसी का, तो वो डिपेंडेंसी के कारण अटैचमेंट हो जाता है। बाकी चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं होते हैं। पीपल डिज़ायर गॉड बिकॉज दे डू नॉट लाइक दैट दे हैव बीन करप्टेड थ्रू लाइफ सर्कमस्टेंसेस। They do not like to be in bondage. They want to be pure and free. They do not want to experience pain, suffering, and distress. The way to become free is to surrender yourself to God to the extent of ultimately leaving the body in His remembrance. इतना याद बाबा के साथ जुड़ा हुआ हो, इतना बाबा पर सरेंडर हो जाए कि शरीर छोड़ते समय भी बाबा ही याद आए। We students study all this. It is different from what you would learn from the conventional world. Your relationship with God is a business relationship because there is the opportunity for great profit. Every time you surrender yourself to God, you multiply your fortune by a factor of 10 or 100 or 1000. This is why it is called true income. Fortune, wealth, happiness, good relationships, purity, virtues, powers and talents all come to you through your surrender to God, your relationship with God. तो जब बाबा के साथ संबंध जुड़ता है, बाबा पर सरेंडर करते हैं। बाबा पर सरेंडर करना माना कुछ भी ज़रूरत है, हमारा कंडीशनिंग ऐसे हो रखा है कि हमारे मन में ऐसे आ जाता है कि अगर मैं इनके साथ ऐसे करूँगी, ऐसे व्यवहार करूँगी, बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से चलूँगी, तो हो सकता है कल को वो मुझे जब ज़रूरत होगा तब वो मुझे मदद नहीं करे। ये कंडीशनिंग बहुत जल्दी हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि यही गिव एंड टेक वाला बिजनेस हमने किया है एक दूसरे के साथ, और हर समय यही सोचा है कि उनके लिए करूँगी तो मुझे जब ज़रूरत पड़ेगा तब करूँगी, या हमें भी तो ज़रूरत पड़ते रहता है तो उनके लिए तो करना होगा
भले अंदर में करने का दिल ना हो, बट इतना अंदर से सरेंडर भाव हो बाबा के लिए कि वो फेथ रहे अंदर कि बाबा इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी, चाहे कोई नहीं हो। अगर मैं बाबा के डायरेक्शन पर चलूँगी तो बाबा मेरा ध्यान रखेगा। तो ये सरेंडर होना बाबा के प्रति, एंड रिलेशनशिप विद गॉड, बाबा के साथ संबंध जुड़ना। तो ये दो चीज़ जब आ जाता है, ये दो चीज़ का जब ध्यान रहता है, तो फॉर्च्यून, भाग्य, वेल्थ, हैप्पीनेस, गुड रिलेशनशिप्स, माना आत्माओं के साथ अच्छे संबंध, प्योरिटी, वर्चूज़, पावर्स एंड टैलेंट्स ऑल कम टू यू, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। इट इज़ कॉल्ड ए ट्रू इनकम, क्योंकि ये आत्मा का प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट इज़ इम्पेरिशेबल। इट गोज़ विथ यू फॉर मैनी बर्ड्स, अदरवाइज when a person dies they leave everything behind। सिर्फ यही चीज़ हमारे साथ जाता है, बाकी सारे यहाँ के चीज़ छोड़ के एक इंसान का मृत्यु हो जाता है। However, your pure karma with God means you take everything with you। तो प्योर कर्मा विद गॉड माना बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से चलना। योर इनकम इज कॉल्ड इम्पेरिशेबल व्हेन यू मेक प्योरिटी योर प्रायोरिटी। चाहे बाहर से कैसे भी सीन दिख रहा हो, कैसे भी बात आ रहा हो, दूसरा कोई गलत समझ रहा हो, फिर भी प्योरिटी पर प्रायोरिटी। मैं अपना विवेक का खून नहीं करूं, क्योंकि जहाँ विवेक का खून करते हैं वहाँ प्योरिटी नहीं है। यू ऑल्सो रिसीव पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। द कॉज ऑफ ग्रेटेस्ट लॉस, इंक्लूडिंग फॉर रिलीजियस पीपल, इज द प्रिजम्पशन दैट गॉड इज एवरीवेयर। If one does not differentiate between God, souls, and matter, the ability to think about spiritual concepts with depth and clarity is obliterated। अगर बाबा, आत्मा और मैटर, ये तीनों के बारे में जो स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स है वो डेप्थ और क्लैरिटी नहीं होगा। अगर इफ़ वन डज नॉट, अगर डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, अगर समझते हैं कि सब, जैसे बाबा को सर्वव्यापी कह दिया, अगर ये इनका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते हैं तो फिर स्पिरिचुअल बातें डेप्थ में और या क्लैरिटी, कभी भी बुद्धि में क्लैरिटी नहीं आएगा, और उससे भाग्य भी ख़त्म होता जाएगा, भाग्य नहीं बनेगा। बाबा says, do this business with me. Give up everything, including your body, die for me in your mind, and in return for this sacrifice and surrender, you get everything, including mastery of the world of heaven। तो हमें ध्यान देना है कहाँ पर हम अभी भी अटके हुए हैं, हम छोड़ नहीं पा रहे, हम बाबा के हिसाब से चल नहीं पा रहे। बाबा कह रहे, डाई फॉर मी इन योर माइंड, यू बिकम एम्परर्स ऑफ द होल वर्ल्ड। हाउएवर, वेरी फ्यू पीपल डू दिस बिकॉज इट रिक्वायर्स ए प्रोफाउंड लेवल ऑफ फेथ एंड विलिंगनेस टू टेक दैट रिस्क। ये एक रिस्क होता है। रिस्क इसलिए होता है क्योंकि हमारे कंडीशनिंग के हिसाब से कुछ और है, तो एक शिफ्ट लाना एक रिस्क फील होता है। देयर इज़ द कंसेप्ट ऑफ बीइंग डेड वाइल अलाइव, मरजीवा जन्म। दिस इज़ ए रेफरेंस फ्रॉम द भागवत गीता। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है?
Baba talks about karma, saying that mostly devotees desire purity and peace. So they want to go to the soul world. However, Baba says it is not worth it because there is only endless silence and you do not experience anything since the soul is in a merged state. It is more worthwhile to aim for heaven because you get peace, happiness, prosperity, health, good relationships, all kinds of benefits. The kingdom of heaven is an earthly experience when the soul is embodied in pure consciousness. Baba wants you to prove who can be God. The way to prove who he is to show how he made the deities as they are. This can also be proved by ascertaining whether what he says can be said by only God or by anyone else. तो वो डिफरेंस को समझना कि बाबा ऐसे कार्य करते हैं कि बाबा सबसे नीचे गिरे हुए सोल को डेटी में देवी देवताओं में चेंज कर रहे हैं. This method of proving God is tangible, logical, coherent and consistent. Deities have physical forms. People recognize them. You can understand that a person can only become a deity according to their karma. However, someone has to teach them that karma. God is known as the one who can teach that level of karma. Even so, they do not know God. Baba also says the price you pay for this attainment is to give up your attraction to the physical body, your addictions to sexuality, drugs, money, and anything that could bind a person. This requires the power of yoga. The price is to renounce gratification of sensual desires while you are alive. It also includes maintaining disciplines, eating pure food, maintaining celibacy, and finishing all your karmic accounts. If you are interested in beauty, there is nothing more beautiful than deities Lakshmi and Narayan, Krishna and Radhe. Even if you get a vision of them, their level of beauty is such that it is impossible even for an artist to represent that level of beauty, because the materials for creating artworks are gross, lacking refinement and subtlety that they have in the time of the golden age, when all elements of matter are in a pure state. तो प्योरिटी ही वो ब्यूटी को ले आते हैं. बाबा says this is a very good deal. What you have to give up compared with what you gain in exchange makes it very worthwhile. Yet it is difficult for people to make that leap, वो jump. Baba says this knowledge is jewels, and these jewels are worth hundreds of thousands. If you can realize this knowledge and apply it, then you create a vast fortune for yourself, which lasts for 21 births, the whole of the golden age and silver age. You get it each cycle. All you have to do is give up the attractions and attachments.
and be willing to let go of everything and die for God. He says, this whole world is going to collapse. You are going to lose everything anyway. You are going to die anyway. तो कितना इस बात को हम ले पाते हैं उस पर डिपेंड करता है. हट करके नहीं करना है, वो अंदर से आना चाहिए. But there is great fortune in doing this in advance, and because of love for God. Just follow His instructions. Make the deal, and you gain the maximum great fortune. Importance is given to the Gita. The Gita is called the mother because it contains the closest thing to the words of God. However, the Gita was falsified. One of the purposes of God's incarnation as the supreme teacher is to correct the errors. जो भी हमारा गलत समझ था, जो रावण ने हमें सिखाया, वो सब करेक्ट करने के लिए बाबा का इनकारनेशन हुआ है. God is called the Father, and the instrument through whom He gives birth to children is called the Mother. The original knowledge of the Gita is that instrument. All other scriptures and forms of information are ultimately derived from the Gita. Study this corrected knowledge of the Gita. Make yourself pure and prepare yourself to leave your body in the remembrance of the Father. Also understand who you are and value yourself. तो यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रहा है, ये जो प्रिपरेशन करना है, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं कि हर सिचुएशन के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है और डेथ के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है. और उस प्रिपरेशन के लिए हमें धीरे धीरे, जैसे ही कोई भी शरीर का पेपर आता है, उस समय बाबा का साथ का अनुभव करना है और वहाँ पर भी उस हिसाब से पार करना है ताकि मृत्यु को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर पाए और वो शरीर छोड़ना एक इजी प्रोसेस हो जाए. तो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर 3. अगर कुछ प्रश्न है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. इसमें कहा कि इस यहाँ इस दुनिया से मरने के लिए अटैचमेंट्स और अट्रैक्शंस को खत्म करना है. राइट. विद द पावर ऑफ योगा. राइट. तो ये चीजें खत्म, इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिटेल कर सकते हैं? हाँ, जैसे हम अट्रैक्शंस में, अटैचमेंट्स में फंसे कैसे, वो तभी फंसे हैं जब हम अंदर से खाली हुए, जब हमारा सेल्फ कनेक्शन ख़त्म होते गया. क्योंकि जब सेल्फ के प्रति हमारा कनेक्शन होता है, सेल्फ लव होता है, सेल्फ ऑनर हम करते हैं, तो ये सारे बातों से जब खुद के साथ रिश्ता जुड़ता है, वो कनेक्शन बैठता है खुद के साथ, तो हम वो भरपूर स्टेट में होते हैं. और जहाँ भरपूरता होता है, आप अगर सोचेंगे कि लास्ट जब आप बहुत खुश थे, आपका स्थिति बहुत अच्छा था, तो उस समय आप देखना कि आपके कोई भी अट्रैक्शन या कोई भी अटैचमेंट आपको हिला नहीं पाया. मतलब कोई भी बात के तरफ आपका अटैचमेंट था ही नहीं, या कोई चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं हुए, क्योंकि अंदर फुल थे. पर जहाँ अंदर खालीपन है और उस खालीपन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, या अंदर में कोई इमोशंस आता है, ज़्यादातर आप देखिएगा जब अंदर में मन में कोई इमोशंस जाग उठता है, तो हम क्या करते हैं, किसी न किसी से हमें कुछ चाहिए.
और सबसे ज़्यादा जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है, हमारा संबंध है, पिछला संबंध है, जो ताज़ा संबंध है, उसके साथ जुड़ने का बहुत तीव्र इच्छा होगा, या कुछ खाने का इच्छा होगा, या कहीं पर जाने का इच्छा होगा, कुछ देखने का इच्छा होगा, ये सारे चीज़ें होगा। जहाँ पर एडिक्शन है उस एडिक्शन के तरफ आकर्षण होगा, ताकि वो फुलफिल्ड फील हो अंदर में। पर इसी जगह पर हमें मरना है, जो बोला है मेंटली डाई मेंटली। तो मेंटली डाई होने के लिए ये इस चीज़ को हमें ऐसे नहीं लेना है कि ये एक वो आया है, मेरे लिए परिस्थिति आ गया, मेरे लिए अभी कि मैं अभी परेशान हूँ, वो स्थिति में नहीं जाना। वो स्थिति में नहीं जाके हमें वहाँ उस पेपर को एक सीखने का एक ज़रिया बना लेना है कि कैसे मुझे बाहर के प्रति जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको देख के, उसको आइडेंटिफाई करके, उसको शिफ्ट करके, बाबा के साथ जुड़ के शिफ्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर लूँ, क्योंकि यही शिफ्टिंग हमें मदद देगा सारे अटैचमेंट्स और अट्रैक्शंस से निकलने के लिए। ओके ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछते हैं तो चैप्टर 4 करें। चैप्टर 4, बुद्धि, द इंटेलेक्ट, कॉन्शियंस, कैपेसिटी फॉर डिस्क्रिमिनेशन। This Murli is especially about the function of the intellect. There is a difference between the education that Shiv Baba gives and the education of a person based on the principles of bhakti. Hinduism in particular and other religions in general. The word bhakti means love for God without knowing who God is. While believing various contradictory ideas, having blind faith and a desire to attain God. There are many levels, from the most elevated to ordinary levels. The education of conventional religion and morality is based on stories that are designed to control people's thinking through coercion, fear, and demanding respect for authority. Coercion का मीनिंग देखेंगे? Prompting. Okay. That are designed. Control. Actually क्या है कि controlling जो tendency है, कोई भी बात, जैसे कोई भी कार्य को कोई कुछ कर रहे हैं, उनको प्रॉम्प्ट करके उसको रोक के कंट्रोल करने का एक टेंडेंसी, आई फील। फियर एंड डिमांडिंग रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, मतलब रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी ऑन डिमांड रहता है उस आत्मा का। दिस मेक्स चिल्ड्रन एंड सोशली इंफीरियर पीपल compliant. This makes children and socially inferior people compliant. They become internally programmed and obligated to act against their own best interests, their conscience, and against logic. तो धीरे धीरे अपना कॉन्शियस, अपना इंटरेस्ट, हो सकता है वो बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है वो हमने देखा है, बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट से डाइवर्ट किया जाता है। पेरेंट्स जो चाहते हैं वो पेरेंट्स के हिसाब से डिसीजन होता है। तो इसीलिए they are programmed and obligated to act against their own best interests, their conscience, and against logic.
बुद्धि को लगाने ही नहीं देते हैं। बाबा सिस्टमेटिकली deconstructs this system and repairs the intellect. He turns the intellect around so that it is able to perform moral reasoning, to see the contraindications and the way the stories of bhakti have prevented people for being in charge of their own lives. क्योंकि भक्ति में जो स्टोरीज है उसके हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। This is why there is a difference between a dormant fortune and an awakened fortune. In the last few Murlis, Baba has specified that your fortune depends on your education. You receive an education for a job, but you also get educated in the social systems of the society you belong to. That education is created by the religious and political authorities who prepared and wrote the scriptures. The particularly influential ones are the Vedas and the Manusmriti. These were created by the Shankaracharyas and their lineage. You find in this Murli the expression tall stories. The Hindi expression is Dant Kathai. Stories with teeth that bite. This applies to moral stories that are designed to obligate the listeners to comply with the ideas of the elders of the society through fear and coercion. तो बड़े जो कहते हैं वही सुनना है, बड़ों का रेस्पेक्ट करना है। एंड स्पेशली जो क्रिश्चियन स्कूल्स है वहाँ पर मॉरल स्टोरीज सिखाते हैं और लास्ट में मॉरल स्टोरी का मॉरल भी लिखा हुआ होता है। बाबा डेवलप्स द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग आई हैव कम हैविंग अवेकेंड माई फॉर्चून। Although the song is simple, it has a deep meaning. Everyone in the golden age had acquired personal spiritual power through direct connection with God in the previous confluence age. They learned the philosophy of karma and acquired intelligence or intellect that is logical and coherent. The result is an awakened fortune. तो फिलॉसफी ऑफ कर्मा जब समझ में आया और इंटेलेक्ट को यूज़ करने लग गया, इंटेलिजेंस एक्वायर करने लग गया, लॉजिक देने लग गया, समझ आने लग गया, तब जाके अवेकेंड फॉर्चून आया, भाग्य बनने लग गया। A dormant fortune is the consequence of the impact of religious stories of the path of bhakti that prevent people from thinking and behaving according to logic and common sense. Questions नहीं उठता है उसमें। Baba says, as soon as a child is born, he or she inherits the ways of the family that they arrive in. If they arrive in a family where the intellects are not developed, then that is their inheritance. When you get born to God, you inherit an intellect that gets developed such that you become an empowered master. This means that everything you do results in positive consequences. Every cycle this happens to you. तो जब बाबा का बनते हैं तो धीरे धीरे हम बाबा जो दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, जो यहाँ कह रहे हैं दीदी, यू इनहेरिट एन इंटेलेक्ट, वो दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है और उस हिसाब से धीरे धीरे हम
हमारा सोच में परिवर्तन होता है, हम एलिवेटेड परसेप्शन में शिफ्ट होते हैं और फिर पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. एवरी साइकिल दिस हैपन्स टू यू. By the time you reach the Iron Age and the patriarchal system comes into force, the intellect is damaged by coercion and forced compliance, in opposition to your rights, moral logic and common sense. तो फोर्सफुली ये सारे चीज चेंज होने लग जाता है. तो बाबा टेक्स अप द वर्ड्स ashram and dharm. The expression grihast ashram refers to a period of person's life when they get married and they run their household. When you run your household on the basis of purity, then it is an ashram. If you run your household on the basis of being a human animal, then your purpose, like the purpose of animals, is eating, sleeping, procreating and surviving. That is called the dharma of someone in the consciousness of being a mammal. Human beings are considered to be mammals by the biological and medical sciences. Many patriarchal traditional communities also view women as simply female mammals. However, from a spiritual point of view, a human being is a spiritual being operating through a physical body, which happens to be mammalian. Your identity is not a mammal. Your original identity is a deity, which means virtuous and full of light. The expression 16 celestial degrees refers to the light of spiritual power. You are being transformed once again into such quality individuals from those who are in the consciousness of being mammals. तो यहाँ तक समझ में आया? Then Baba takes up some beliefs and expressions of bhakti to prove the difference between Shiva and Shankar. They say that Shankar and Shiva are the same, which means the benefactor and the destroyer are the same. Such faulty logic implies that they cannot recognize that it is impossible to be simultaneously a benefactor and a destroyer. To think like that means you have a stone intellect, incapable of applying logic or processing and analyzing or critiquing ideas. तो इसमें यह है कि जहाँ हम बुद्धि को यूज़ नहीं करते हैं, जहाँ हम किसी बात को बिना एनालाइज करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ हम खुद सोचते नहीं हैं बातों को, वहाँ स्टोन इंटेलेक्ट है. इसीलिए चर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है. हर बात का चर्निंग. किसी ने कुछ कह दिया तो उसको भी चर्न करके समझ के तब अंदर लेना है. और जहाँ चर्निंग नहीं है, बोला और ले लिया, वो है भक्ति. You are developing a divine intellect, but the term Paras Buddhi is more specific. It means a diamond intellect. The Paras intellect is able to process ideas and to apply moral logic accurately and precisely. Concepts and ideas are transparent and clear to you. Baba is changing these stone intellects into the
accurate diamond intellects. जैसे अब हमारा डायमंड इंटेलेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसलिए पहले जैसे हर बात में हाजी करते थे, पर धीरे धीरे समझ में आया कि अब हाजी करने के लायक वो समय नहीं है। इसलिए जहाँ रॉन्ग है कर्मा है, जहाँ विकर्म होने का चांस है, वहाँ नाजी भी कहना होता है। तो डायमंड इंटेलेक्ट ये शिक्षा दिया कि ना भी कहना है। दिस एक्सप्रेशन योर इंटेलेक्ट्स हैव नो पावर means you have no capacity to process ideas. Your intelligence has no brilliance and no refinement of thought. You cannot tell the difference between coherent and incoherent. Baba is altering our intellects that were damaged by the moral stories of bhakti. He is enabling us to see clearly. We cannot be coerced into accepting something that is not right or does not make sense. The system of Hindu bhakti uses coercion as the preferred method of obtain compliance. The Garuda Puran does not contain fearsome stories, but it describes the 28 different consequences of 28 particular types of negative karma. When Baba uses the expression roar of Narak, translated as extreme hell, it refers to the consequences of exploitation. Ultimately, exploiters get thrown into a pit of snakes. Thus, roar of Narak is very specific. तो pit of snakes माना सारे emotions में vices. Baba talks about nectar. Nectar does not refer to a liquid. However, in temples, they give people a teaspoonful of holy water and call that nectar, but it is not. Nectar refers to the nectar of knowledge. You drink something into your mind that immediately gives you total clarity. और total clarity जब होता है, understanding जब आता है, तो फिर पीछे वाला संस्कार में शिफ्ट नहीं हो पाते, उसी में ही टिक जाते। और जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा तब तक कन्फ्यूजन और हिलते रहेंगे, हलचल होते ही रहेगा, एक बार इधर एक बार उधर। Then people say the water of the Ganges is nectar, but it is not capable of purifying anyone's soul or creating clarity of mind. The saying, at the moment of death, a person should have the water of the Ganges on his lips, represents the spiritual truth that when you die, it should be in the consciousness of the soul, in the remembrance of God, knowing clearly what that is. There is another story about nectar where Arjun shot an arrow in the ground, causing a stream of water to issue forth and flow directly into the mouth of Bhishma, the grandfather and teacher of the Kauravas, as well as the Pandavas, who was lying on a bed of arrows at the time of his death. Baba says, "You have not shot any arrows," meaning you have not struck anyone's intellect such that they die from the blind intellect that no longer functions. In reference to a current news story, Baba comments that if someone
claims to be an incarnation of God, an avatar, then they must prove this by shooting an arrow of knowledge and enabling that person who is intellectually dead and dim to gain total clarity. तो जैसे वो एग्जाम्पल दिया, हर बात में हाँ जी करना, अब धीरे धीरे सब ना जी करना भी सीख गए, और ये है तीर लगाना, जहाँ पर जिस आत्मा को समझ देना है वहाँ पर ही समझ दे देना और शिफ्ट कर देना. The present state of the world, where people lure the masses by false claims, is according to the predestined world drama, and it will repeat in this particular way. However, this is the time for absolute change. The great change is accomplished through a change of consciousness, a change in the way the intellect functions. This requires a special kind of education. Baba systematically deconstructs the ideas in bhakti. For example, they say God gives a child. In that case, it follows that God may take that child away. Now, why is it considered something bad? Another problem arises. People generally think if they create a child, that child belongs to them. But in fact, it does not. All people belong to God. The idea of possessing another human being is contrary to the reality that all people belong to God. And no person can be in possession of another person. किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते हैं. That would be slavery. Baba says, if a child leaves his body, it is not because God takes the child, but the child has to continue his role elsewhere according to his karmic accounts. It has nothing to do with God. Baba says, you need a relationship with death such that you can accept it with equanimity. Imbalance नहीं होना है. डेथ के बारे में बैठ के सोचना है, होता क्या है. जब सोचेंगे तब बुद्धि में वो अंडरस्टैंडिंग आएगा कि यहाँ मैं मरती नहीं हूँ. तो फिर जब बीमार होंगे, जब कोई भयानक बीमारी होगा या कोई एक्सीडेंट होगा, तो वहाँ पर भी फियर नहीं आएगा, क्योंकि पता है कि मैं तो मरती नहीं हूँ. That is based on conquering attachment. The story of the king who conquered attachment is another of the religious stories Baba calls Dant Kathai. Dant Kathai is a story designed to bite you. Dant Karna means to bite, also to scold. It courses and shames you by imposing faulty moral logic that is too complex for you to repudiate. What is repudiate? सेंटेंस सुन के लग रहा है कि ये भी होता है ना, absorb. Absorb. I don't know, I'm not looking up, but उसके हिसाब से बता रही. Can you please check once in Google? दीदी आप रिपीट करेंगे स्पेलिंग? REPUDIATE. Refuse to accept or believe. Okay, refuse to accept or believe. It courses and shames you by imposing faulty moral logic, and that is too complex for you to repudiate. Baba says, you are conquering death and becoming free from the fear of death. तो आज यहाँ तक ही रखते हैं, आगे फिर कल पढ़ेंगे. ठीक है, और कुछ शेयर करना है या कुछ करना है या आगे पढ़ना चाहेंगे? 1-2 पेज और है इस चैप्टर का.
प्लीज। जैसे एक बोला था ना, डोरमेंट फॉर्चून और डोरमेंट फॉर्चून और एक्टिव फॉर्चून, है हाँ ना? हाँ, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक तो हालांकि ये बात डोरमेंट थोड़ा है सा और एक एवेकनिंग फॉर्चून। अवेकनिंग फॉर्चून, ओके। हाँ। और प्लस जो ये इतनी कंडीशनिंग हो रखी है माइंड की, हम्म। तो इसमें ये चीजें कभी भी पॉप अप होके आ जाती हैं एक्चुअली। राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे मैं प्रीवियस चैप्टर से भी इसको वो कर पा रही हूँ कोरिलेट, कि मरना है सिविलाइजेशन से ना, वी हैव टू मींस सबको भूलना है। यस। तो हमारे अंदर तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम वी आर मतलब बहुत थिन लाइन होती है कि हम कैसे एक्ट करते हैं। पुरानी दुनिया के अकॉर्डिंग भी कंडीशनिंग भी बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। यस। मतलब उसको कैसे निकालें आप, उसको थोड़ा सा देखिए, क्लियर कर। पुरानी दुनिया का कंडीशनिंग से अगर निकलना होगा, सबसे पहले तो बातों को समझना होगा, क्योंकि जब तक बुद्धि को समझ में नहीं आएगा, बुद्धि में क्लैरिटी नहीं आएगा, तब तक उस कंडीशनिंग से आप निकल नहीं पाएंगे। और एक तो सोचना, दूसरा सेकंड विधि है कि जब ऐसे कोई सिचुएशन आता है, उस समय रिस्क लेना। रिस्क कब होता है? रिस्क तब होता है जब कंडीशनिंग हो रखा होता है कि यहाँ पर एक गड्ढा है, एंड कंडीशनिंग ये है कि मैं इतना बड़ा जंप नहीं दे सकती, तो आप रिस्क लेते हो कि मैं जंप करके दिखाऊंगी। रिस्क लेते हो ये, क्योंकि ये नई बात है आपके लिए कि मैं इतना बड़ा गड्ढा को मैं क्रॉस कर सकती हूँ, तो वहाँ पर रिस्क होता है। तो पुराना जो कंडीशनिंग होता है, उस पर हमें विश्वास है, एक बिलीफ बन गया है अंदर में, और ये इतना फर्म बिलीफ है कि हम उसको डिसबिलीव कर ही नहीं पाते हैं। हमारे अंदर फट से फियर आ जाता है, हमारे अंदर वो सारे बातें एसोसिएट हो जाता है जो उसका कंसिक्वेंस में हो सकता है ना? तो वो आके फिर से वीक बना देता है। पर उसी समय अगर आप स्ट्रांग रह के आप वो, इसीलिए बाबा कहते हैं फर्म डिटर्मिनेशन होना ज़रूरी है। फर्म डिटर्मिनेशन रख के हर एक स्टेप लेके स्ट्रांग रह के कि नहीं, मुझे ये जंप करना ही है एंड आई कैन डू इट। तो जब आप आई कैन डू इट वो वाला स्टेप उठाते हो तो रिस्क भी लेते हो आप, और ये रिस्क जब लेते हो तब जाके वो अवेकनिंग फॉर्चून बनता है, क्योंकि आप सत्य के और पैर रखते हो, असत्य को छोड़ देते हो। हाँ, ये तो हम लोगों ने व्हेन वी आर अवेयर एवरी टाइम, समटाइम्स क्या है ना, जैसे ऑटो मोड पर है ना चीजें। यस। कभी कभी तो हम सोचते भी नहीं है, कर लेते हैं, क्योंकि क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन है, या ये मेरा क्या बोलते हैं ना, नोन पाथ है ये मेरा। तो बहुत सी बार तो मतलब बहुत सारे ऐसे एक्ट्स होते हैं पूरे दिन भर में, which are according to the old belief systems. यस। पर आप बाद में करने के बाद अवेयर हो जाते हो, राइट, कि मैंने ऐसे कर दिया, हाँ, मैंने गलती कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यूजुअल जो एक्ट्स होते हैं, उसमें शायद तो हम लोग, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है हम लोगों को, है ना, हम लोगों को, हम रूटीन में चल रहे हैं, हम लोग को उसमें कोई इशू भी नहीं, किसी को हमसे प्रॉब्लम नहीं है, हमको भी, हम कभी भी नहीं भी सोच पाते हैं। हाँ, तो उसमें क्या करें? देखिए, जैसे अभी आपको ये अवेयरनेस है कि मैं ऑटो मोड में कर लेती हूँ, राइट? वो मुझे आज अभी लगा जब मैं ये सुन रही थी एक्चुअली। यस। तो कभी ना कभी कुछ बातें आप करने के तुरंत बाद आपको लगता है कि मैं ऑटो मोड में आ गई, राइट? कुछ बातें आप मुरली सुनते सुनते आपको याद आता है, ओ उस दिन मैंने ऐसे कर लिया, राइट? कुछ बातें हम जब डिस्कशन में आते हैं उसमें पता चलता है कि मैंने कर लिया। तो इसमें प्रोसेस ये है कि जो आपको रियलाइजेशन होता है, ये रियलाइजेशन स्टेप, राइट? जैसे ही आपको रियलाइजेशन होता है, आपको उस बात को लेकर बैठना होता है, बैठकर उसके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ता है
कि नेक्स्ट टाइम ऐसे सीन आएगा तो मैं ऐसे ऐसे करूँगी, इस बार मुझे मिस्टेक नहीं करना है। जब आप प्रिपेयर्ड रहते हो, आप बुद्धि में उस बात को घुमाते हो और रिप्रोग्रामिंग मैसेज, यस, रिप्रोग्रामिंग भी करते हो और एक बुद्धि में क्लैरिटी भी देते हो कि मुझे सत्य पथ पर चलना है, गलती नहीं करना है, ये इंफॉर्मेशन देते हो, राइट? जब ऐसे तैयारी करते हो, प्रिपेयर करते हो, तो नेक्स्ट सीन जैसे ही आता है वो सिमिलर, जब सीन एक दिखाई देता है कि मुझे ये वाला संस्कार को काटना है, तो आपका अवेयरनेस आ जाता है, वहाँ ऑटो मोड नहीं आएगा फिर। राइट। तो ऐसे ऐसे कुछ ऑटो मोड आप कर लेंगे, कुछ आप सत्य रिस्क लेके आप क्रॉस कर लेंगे, ये होगा। पर एक समय आएगा कि आपका एक्शन ज़्यादातर सत्य वाला हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। हाँ, और वो वाला कम हो जाएगा, लौकिक वाला कम हो जाएगा। तो क्या होगा, जो जब आप अलौकिक वाला ज़्यादा एक्शन उठाने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बुद्धि अलौकिक हो जाएगा, लौकिक वाला आप ऑटोमेटिक छोड़ने लग जाएंगे, आपको अवेयरनेस की ज़रूरत ही नहीं होगा उस समय। समझ गए? जी जी जी। क्योंकि वो स्टेट में आप टिकने लग जाओगे। मैं समझी। हाँ दीदी। तो इनिशियली थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, अपने साथ बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने को प्रिपेयर्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? राइट। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। मेरे हाँ, हो गया देवोबन, मेरा हो। हाँ दीदी, मेरे को एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे आप पढ़ रहे थे ना डेथ के बारे में, हाँ, तो उसका एक मैकेनिज्म समझ में आ रहा था। अच्छा, कि ऐसे बोला ना कि डेथ तो एनीवन कैन हैव, राइट? डेथ विल हैपन, देन यू विल टेक अ बर्थ, उसका दे विल टेक बर्थ। सो एज पर बाबा का कुछ नहीं होता इसमें, राइट? सो वो अपने हिसाब से होता है। तो उस बाय दैट लॉजिक, सी आई फील वंस डेथ इज आल्सो, मुझे सडन वाला अभी तक तो मुझे समझ में नहीं आया, बट वो बाबा बोलते हैं ना कि यू मतलब by the way we are purifying and everything, even our lifespan of this body may probable to increase. Yes. Right? Because there's nothing that is entangled. मतलब definitely. जो बोलते हैं ना, बंगाली में गीट बोलते हैं, I don't know what is it in Hindi, like too much of not. not. Then there's no knots, which means you are no वो बढ़ जाता है. And similarly, if you look at somebody who is suffering from a very severe disease, right? They are very very closer to their death. Yes. And the power of the soul can actually cure it, and the power of the soul can actually take them to the place where they may leave this body. Correct. Right. So Correct. by that logic, it is to a certain extent is also onto our hand. Definitely. जैसे दादी जान की 104 साल कैसे जिए, कैसे उन्होंने अपना सारे डिजीज़ जो होते थे, जो जैसे एक बार नाक से बहुत ब्लीडिंग भी हो रहा था उनको, उन्होंने पुरुषार्थ द्वारा उसको ओवरकम किया विदाउट मेडिसिन, ओवरकम करके, और डॉक्टर आते आते वो डायमंड हॉल में जाके वो क्लास कराने चले गए, इतना पावर था। तो हमें उसके लिए हमें छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स आएंगे उसमें हमें प्रैक्टिस करना है, उसमें पावर को इंक्रीज़ करना है, ना कि जल्दी से उसके कंट्रोल में आके मेडिसिन लेके परेशान होके एकदम सबका सेवा लेके वो हो जाना है। वो हमारे लिए मौका है सीखने का। इसमें भी दीदी एक चीज जो मेरे को लगता है कि जो ऐसे अकेले रहते हैं, जैसे I feel उसमें healing better होता है. Yes, definitely. Because you are not diluted onto your this thing and you want to heal. हाँ, but ये भी है, देखो एक और मौका है,
जो अकेले नहीं होते हैं उनके लिए एक और मौका है। वो मौका ये है कि सब पास में होते हुए भी किसी को पता नहीं चले कि मैं बीमार हूँ, वो वाला प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है उनको। और ये भी बहुत पावरफुल बात है, राइट? जो अकेले है ऑलरेडी और बीमार है, उनके लिए तो वो एनवायरनमेंट बना हुआ है, और जिनके लिए एनवायरनमेंट बना हुआ नहीं है और खुद अपने पावर से अकेले हो जाते हैं, जबकि अंदर में कितना तकलीफ है, वो और भी ज़्यादा पावरफुल होता है, राइट? So, but then we probably need to think someone who leaves the body, and they leave the body without just suddenly. उसमें भी लगता है कि वहाँ के उनके कॉन्शियसनेस में कोई डर या कुछ तो होता होगा उनके कॉन्शियसनेस में भी। यस, होता है ना, क्योंकि मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में भयंकर बातें। I just go, मेरा दूसरे जगह पार्किंग है, I'm just keeping it for a while. Sorry. है ना, क्योंकि डेथ के बारे में कंडीशनिंग ही ऐसे हो रखा है जो फियर आता है। वो बहन, हाँ दीदी, मेरे को ये वाला नहीं समझ, मतलब ये वाला भी थोड़ा और सोचना है कि जिनको मानो अचानक का डेथ होता है, उसमें भी क्या थॉट चलता है किसी को, मतलब do they feel that they're going to die? Is that also part of their consciousness? डेफिनेटली दे Do they मस्ट, attract that also? होता होगा, डेफिनेटली होता होगा। डेथ ऐसे तो नहीं होता है कि कुछ इशारा नहीं होता है, इशारा ज़रूर होता होगा। हाँ जी सोनी बहन बोली। दीदी एक मुझे लाइन और याद आ रही है। आपको पता है सिस्टर डिवीज ने बोला कि अगर किसी कोई हम किसी के पेरेंट्स होते हैं तो हमको लगता है कि बहुत पोजेशन वाला होता है कि ये मेरे ही हैं, तो भूल जाते हैं कि वी बिलोंग टू वन ओनली। उसको भी दीदी आप थोड़ा सा बताएंगे मुझे, सिस्टर डिवीज क्या बोलना चाह रहे हैं उसमें? हाँ मतलब पेरेंट्स है, समझ में नहीं आया। उनको बोलते हैं कि हमने अगर पैदा किया है तो ये हमारा अधिकार है। हाँ राइट। तो बच्चा पैदा हुआ माना हमारा अधिकार है, ऐसे समझते हैं कि वो बच्चा मेरा ध्यान रखेगा, वो बच्चा मैं जैसे कहूँगी वैसे सुनना पड़ेगा, उनका कोई चॉइस नहीं है, उनके ऊपर पूरा जैसे क्या करते हैं। अब आप अगर दुनिया में देखेंगे कि बच्चे का चॉइस पर ध्यान नहीं रहता है पेरेंट्स का, पेरेंट्स का चॉइस इम्प्लीमेंट किया जाता है बच्चों पर। बच्चे क्या बनेंगे वो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। बट वो ये सोचते हैं कि हमें ज़्यादा पता है, आपको नहीं पता। हाँ, we have seen the world, right. दुनिया में we are experienced and you really don't know. तो एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली वो लोग क्या है, वो अटैचमेंट वाला संबंध में जुड़ जाते हैं, राइट? अटैचमेंट वाला संबंध में जुड़ने के कारण वो एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं बच्चे को अपना, और बच्चे को अपना प्रॉपर्टी समझने के कारण वो पूरा उसका अधिकार समझते हैं। बट एक्चुअली बाबा के हैं हम सारे बच्चे। तो दीदी ये भी इनह्यूमन बिहेवियर हुआ। हाँ डेफिनेटली, मीन्स कि हम किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। यस, जैसे कि प्रथा होती थी, कंट्रोल करते हैं। आप सोचिए, हाँ वो स्लेवरी है। जैसे बच्चे को स्कूल जाने का मन नहीं है, जबरदस्ती स्कूल में ले जाके छोड़ के आ जाना, है ना? तो क्या सिखा रहे हैं उस बच्चे को? कोई कंट्रोल कर रहा है और वो बच्चा कंट्रोल हो रहा है। वहीं से शिक्षा कंडीशनिंग शुरू हो जाता है। और दीदी दूसरे के बच्चे के प्रति उतना ही इंडिफरेंस होता है कि मुझे क्या मतलब उसके क्या कर रहा है। यस, आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ समझ गई। मतलब he or she is my child, और वो जो दूसरा बच्चा है वो किसी और का है, तो मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। हाँ, उसके लिए तो रोएंगे नहीं अगर चोट लगेगा तो। खुद का बच्चा के लिए कितना परेशान हो जाते हैं।
तो प्रॉपर्टी मान लेते हैं ना, ओके, क्योंकि वो बच्चा के थ्रू माँ बाप को मान शान भी मिलेगा, राइट। इसलिए बचपन से उस बच्चे को फर्स्ट आना है, पढ़ाई में अच्छा होना है, इसमें इस कंपटीशन में अच्छा होना है, इस कितने सारे बातें उनके ऊपर बोझा बना के दे देते हैं और वो पर बोझ दीदी, को लेकर चलते हैं। हाँ, माय क्वेश्चन इज कि फिर हम इन सब चीजों से कैसे निकले कि बाबा कहे हैं हम, ये कॉन्शियसनेस तो दीदी एक सटल वे में तो होता ही है कि ये मेरे बच्चा है या फिर ये मेरे फैमिली से बिलोंग करता है और ये नहीं करता, ये तो दीदी होता ही है सटल वे में भी। नहीं होता ही है, नहीं, वो नहीं उसको होता। शिफ्ट करना पड़ेगा कि ये बाबा का बच्चा है, क्योंकि हमें पता है कर्मा फिलोसफी, उसके हिसाब से वो बच्चा इस घर में आया, हिसाब किताब पूरा होगा तो नेक्स्ट जन्म में चला जाएगा, जहाँ रोल प्ले करना है, जहाँ पर हिसाब किताब है वहाँ चला जाएगा। वी नो दैट नॉलेज, राइट। तो हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं कि मत जाओ, हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं कि ट्रीटमेंट अच्छा से करके उस बच्चे को बचाना ही है। क्यों नहीं बचा, मर कैसे गया? वही तो कहते हैं ना कि भगवान ने बच्चा दिया तो भगवान लेकर भी जा सकते हैं, बाबा कहते हैं एक बार। राइट। तो जहाँ पर रोल प्ले करना है वहाँ तो जाना ही है, तो अधिकार नहीं है किसी का। राइट, थैंक यू। ठीक है, फिर रखें। ओम शांति। थैंक यू।